السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اور کس کی مذمت کی گئی ہے، اس پر لگاتار آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 52 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 2-3 باتیں کریں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے مدح سرائی۔ مدح سرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی تعریف کرنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے تعریف کی، مدح رجل رجلا عند النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کی تعریف کی۔ فقال ویحک قطعت عنق صاحبک، کہا تیری بربادی ہو، تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی۔ اور پھر اسی لفظ کو بار بار کہتے رہے کہ قطعت عنق صاحبک، کہ تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ جو تعریف ہے، اب سوال یہ ہے کہ تعریف ایک دم منع ہے یا تعریف کچھ جائز ہے کچھ منع ہے؟ تو اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے اور حقیقت میں وہ چیز اس کے اندر ہوتی نہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ پروگراموں میں، اشتہاروں میں لکھا ہوا ہے قاطع بدعت فلاں 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 لکھا ہوا ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ ایک آدمی کا بولنا نہیں ہے، جتنے لوگوں کو آپ نے اشتہار دیا سب کے ساتھ جھوٹ بولے آپ۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک کو جھوٹ بولنا ایک آدمی سے، میں نے اتنے لوگوں کے سامنے اگر تعریف کی ایک آدمی کی تو اس کا مطلب سب سے میں جھوٹ بولا۔ ہمارے ہاں کابرین میں شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ تو بہت وقت کے پابند آدمی تھے، تو کہیں اچانک حضرت پہنچ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ تشریف رکھیے، حضرت 5 منٹ بات کریں گے۔ اگر اس نے اعلان میں کہہ دیا کہ حضرت 5 منٹ بات کریں گے تو مولانا 5 منٹ سے زیادہ 6 منٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 5 منٹ کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اگر 5 منٹ کو توڑا گیا تو جتنے لوگوں سے وعدہ کیا سب سے وعدہ خلافی ہوئی، کوئی ایک آدمی سے وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے۔ آپ ایک آدمی سے بات کرتے ہیں تو ایک آدمی سے وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ پوری محفل میں جیسے بعض لوگ تقریروں میں، اچھا آپ لوگ بیٹھے 10-5 منٹ بات ہوگی تو آپ 10 منٹ بات کر لیجئے، لیکن 10 منٹ بیٹھا کر کے آپ نے 1 گھنٹہ جو بات کی، سارے لوگوں سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سب سے آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو اگر تعریف کی گئی اور تعریف میں خدا نخواستہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوتا ہے، عموماً پروگراموں میں ہوتا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں، فلاں آدمی ہے، اتنا کام کیا ہے، اور وہ جانتا رہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس کے اندر اس میں سے 20% کے علاوہ 80% جھوٹ ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ، دوسری بات، اگر خدا نخواستہ وہ آدمی غلط ہے، مطلب مسلمانوں کو ستانے والا ہے، سماج کو ستانے والا بندہ ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، شرارتیں خوب کرتا ہے، آپ کے پروگرام میں آیا ہوا ہے، آپ اس کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی بدماش آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، کہ کیونکہ وہ تمہاری تعریف کی وجہ سے ہی دن پر دن وہ بدماشی کے لیے کیا ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ آپ نے اس کو بدماشی پر ابھارا۔ جب ایک آدمی کوئی غیبت جیسے کوئی کرتا ہے، اگر غیبت کرنے والا کے سامنے جس کے ساتھ غیبت کی جا رہی ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی آپ دوسرے کی بات مجھ سے نہ کریں، تو وہ غیبت کرنا بند کر دے گا۔ لیکن ہم جب اس سے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا اس کے آگے کیا ہوا، تو ہم گویا کہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں کہ آپ غیبت کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سننے والا بھی اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے جتنا غیبت کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ایسی تعریف کی گئی جو فاسق اور فاجر ہے، سوسائٹی کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تعریف جب کی جاتی ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو تعریف کرتے وقت بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تعریف ایک دم ناجائز ہے، کسی کی تعریف کرنا ہی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بسا اوقات صحابہ کی تعریف کی ہے۔ تو تعریف کرنے میں 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آدمی کسی کی تعریف کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو مولانا کی تعریف کرنی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ تعریف کروں گا تو یہ بندہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تکبر میں بول سکتا سونے کی نہیں ہوتی، تو آپ سوئیں گے میں بھی سو جاؤں گا۔ ہاں
जब आदमी किसी के साथ बात करता है और बात करने के बाद जो है उसको बड़ा बनाता है, अगर आपको ये महसूस हो जाए कि नहीं, अगर हम इसकी तारीफ करेंगे तो ये और अच्छा काम करेगा, अगर ये बात है तो फिर ऐसी तारीफ करना जायज है। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि तारीफ कर करके इसको हमने जिंदगी इसकी बर्बाद कर दी, आपको मालूम है दुनिया में बहुत से लोग अपनी इस्लाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी हर गलत बात पर, कोई बड़ा आदमी जब हो जाता है उसकी हर गलत बात पर लोग हंसते हैं और यस करते हैं, हाँ बोलते रहते हैं। लिहाजा उसके कोई चांसेस अब नहीं होते हैं कि वो अपनी इस्लाह खुद से कर ले, क्योंकि छोटे आदमी को तो हजारों लोग टोकने वाले हैं कि भाई तुमसे ये गलती हो गई, लेकिन एक आदमी बड़ा है, ओहदे के लिहाज से, इल्म के लिहाज से बड़ा है, अब अगर उसकी तारीफ की गई और वो तारीफ उसके अंदर, हो सकता है वो सही तारीफ की जाए, लेकिन अगर ये महसूस हो जाए कि दिन पर दिन तारीफ करने की वजह से बर्बाद हो गया, तो फिर ऐसी शक्ल में ऐसे शख्स की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जिसकी तारीफ की जाए उसकी क्या जिम्मेदारी है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के सामने अगर कोई उनकी तारीफ कर देता था तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हो तन्हाई में अपने रब से कहते थे कि अल्लाह, मेरे बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो उसे मालूम नहीं है, अगर मेरे गुनाह उसे मालूम हो जाए तो ये मेरी तारीफ नहीं करेगा, लिहाजा ए रब्बे जुल जलाल, जो गुनाह इसको नहीं मालूम है वो मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अगर ऐसा बंदा है तो यकीनी बात है कि उसकी इस्लाह होती रहेगी। या ये कि जिसकी तारीफ की जाए, मौसा अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी तारीफ की जाए उसको चाहिए कि वो तन्हाई में बैठकर अपने बारे में सोचे कि जो मेरे बारे में लोग कह रहे हैं कितना सच है और कितना झूठ है, और अपने बारे में खुद सोच करके फिर अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, मैं इसके गुमान के मुताबिक हो जाऊं, मेरे अंदर जो कमियां हैं परवरदिगार आलम दूर कर दे। ये सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि जिसको तारीफ की जाए, तो करने वाले को भी एहतियात करना चाहिए, सुनने वाले को भी एहतियात करना चाहिए। बहरहाल चूंकि इसकी बुनियाद पर आदमी का नफ्स मोटा होता है, और मोटा होने के बाद जो है वो तकब्बुर करता है, और तकब्बुर जो है वो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है। इस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। दूसरी चीज जो मना है वो शोहरत तलबी है। हर आदमी के मिजाज में देखिए ये सारी चीजें डेली हमारे साथ होती रहती हैं। आदमी कहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं। अल्लाह के तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन लबिसा सौब शोहरतिन फिद दुनिया अल्बसहुल्लाहु सौब मज़िल्लतिन यौमल क़ियामा, रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजा व अबू दाऊद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में शोहरत का लिबास पहनता है तो क़यामत में हम उसको जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। अब ये शोहरत इंसान के मिजाज की चीज है, फितरी चीज भी है, तो कौन सी शोहरत जायज है, कौन सी शोहरत नाजायज है, इसके बारे में भी। अगर एक आदमी शोहरत इसलिए हासिल करता है कि शोहरत के लिए आदमी तीन काम करता है, या तो अच्छा इल्म हासिल करता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोगों पर हमारा प्रेशर हो, या ये कि खूब पैसा कमा लूं ताकि हमारी शोहरत हो जाए, या मुझे अच्छा ओहदा मिल जाए ताकि मेरी शोहरत हो जाए। ये तीनों के बारे में इस्लामिक पॉलिसी बहुत क्लियर है। पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आलिम के बारे में फरमाया कि कोई आदमी अगर इल्म हासिल करे और इल्म हासिल करने के वक्त उसकी नीयत ये हो कि मुझे बड़ा बनना है ताकि सामने वाले को छोटा दिखलाना है, सामने वाले को शिकस्त देना है, उससे डिबेट करनी है, उससे मुनाजरा करना है, उसको नीचा दिखलाना है, तो आपने फरमाया कि ये जो इल्म हासिल किया जा रहा है ये खतरनाक इल्म है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इल्म के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन, कि अल्लाह ऐसा इल्म अता फरमाइए जो नफा बख्श हो, दुनिया में भी नफा बख्श हो और उसके जरिए हमारी आखिरत भी बने। इल्म तो लोग मालूमात को इल्म कहते हैं, गौर से सुने जुमले को। नॉलेज को क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। हालांकि मालूमात अलग चीज है और इल्म अलग चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाया कि राफुल इल्म मारिफतुल्लाह, इल्म तो असल वो है जो हासिल करने के बाद आपको अल्लाह तक पहुंचा दे, ये इल्म है। और मालूमात शैतान को भी बहुत ज्यादा थी, तो मालूमात हमारे पास कोई चीज नहीं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़ी मालूमात रखते हैं, उन मालूमात के जरिए वो कहां से भटक गए? अल्लाह के रास्ते से भटक गए, अल्लाह तक नहीं पहुंच पाए। तो इट मीन दिस इज द नॉलेज, ये नॉलेज है, ये मालूमात है, ये हमारे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं रखता। एक जाहिल आदमी हो, मिसाल के तौर पर हजरत अली का गालबन वाकया है कि नहीं, एक फलसफी का वाकया है कि एक बद्दू मुसलमान था बेचारा, रेगिस्तान में रहता था, तो उसने उससे कहा कि तुम लोग जिस खुदा पर ईमान लाते हो क्या दलील है तुम्हारी?
تو उसने कहा वो तो आम ही आदमी था, आम आदमी था वो। तो वो इत्तेफाक से जहां बैठा हुआ था रेगिस्तान में थोड़ी दूर पर जो है वो ऊंट की मेंगनियां पड़ी हुई थी। तो उसने कहा बद्दू ने कि देखो ये देखा है तुमने, ऊंट यहां से गया है? कहा नहीं, लेकिन ये मालूम होता है यहां से उठ गया है। तो उसने कहा कि अगर ऊंट की मेंगनी से ये मालूम हो जाता है, ऊंट देखा नहीं गया है कि ऊंट मौजूद है, ऐसे ही ये पूरी कायनात को देखने से मालूम होता है, नजर आवे या ना आवे, कि इसका कोई बनाने वाला है। अगर ऊंट की मेंगनी से देखकर ऊंट के बारे में हम पता लगा लेते हैं, तो इस पूरी कायनात का जो नज्म चल रहा है, पूरी कायनात का जो सिस्टम है, उससे हमको मालूम हो जाना चाहिए कि इसका कोई बनाने वाला मौजूद है। तो एक आम आदमी है, तो उसके इल्म ने उसको खुदा तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया, और उस फलसफी के इल्म ने उसको खुदा से क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो ये नॉलेज वाला बंदा है। वो कौन है? वो इल्म वाला है। इसलिए हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रासुल इल्मी मारिफतुल्लाह, कि इल्म तो असल वो होता है जो अल्लाह की मारिफत पहुंचा दे। अगर अल्लाह की मारिफत हो गई तो आलिम बना कोई आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म हासिल अगर किया और उसकी ये गरज है तो ये मालूमात हासिल कर रहा है। अच्छा, फिर अच्छा पैसा, अगर पैसा इसलिए कमाया जा रहा है कि हमको शोहरत मिल जाए, और पैसा कमाने का आने का जरिया और जाने का जरिया उसे पता ही नहीं कि आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, तो ये पैसा हमारे लिए वबाले जान है। फिर तीसरी चीज ओहदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी पॉलिसी तो यह है कि अगर इस्लामी हुकूमत होती है तो इस्लामी हुकूमत में इलेक्शन में आप खुद से नहीं खड़े हो सकते। आपको मालूम है, इस्लामी हुकूमत अगर होती है तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं ये ओहदा चाहता हूं लिहाजा आप लोग मुझे वोट दीजिए। इस्लाम में नहीं है। लोग कहें कि आप खड़े होइए, हम आपको वोट देंगे। ये कैफियत इस्लामी कैफियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये बहुत सरीहत सराहतन हदीस है, जमाने में सराहतन हदीस है कि जो ओहदा तलब करे आप उसको ओहदा नहीं दे। कोई आदमी की अगर ख्वाहिश है कि मैं क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मस्जिद का, किसी जमात का मैं अमीर बन जाऊं, ऐसे आदमी को ओहदा नहीं दिया जाए। ओहदा तलब नहीं होना चाहिए। लोगों की ख्वाहिश हो कि ये बंदा नेक है और इसको अमीर होना चाहिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होना चाहिए, इसको मस्जिद का ट्रस्टी होना चाहिए। लेकिन मस्जिद के ट्रस्टी के लिए आप सारा जाल बिछा रहे हैं, सारी सियासत खेल रहे हैं, ये टोटल इस्लाम के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से शोहरत है। तो ये जो शोहरत हासिल करने के जो 3 तरीके बयान की गए हैं, तीनों तरीके जो है वो इस्लामी मिजाज के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लबिस सौब शोहरतिन फी दुनिया, कि जो इस दुनिया में शोहरत का लिबास पहने। अगर इसका डायरेक्ट भी माना लिया जा सकता है कि एक आदमी कपड़ा पहनता है कपड़ा एक ऐसा कपड़ा पहनता है कि मैं जब लोगों में जाऊं तो एकदम अलग सा लगूं। मेरा कपड़ा ऐसा होना चाहिए एकदम अलग सा, चाहे डिजाइन के साथ और चाहे कपड़े की क्वालिटी के साथ। अगर दिमाग में ये बात आ गई तो अब आप वो कपड़ा पहनकर उस महफिल में नहीं जाए। या मिसाल के तौर पर आपने इतर उठाया, इतर लगाना इसलिए कि लोगों को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे, बहुत अच्छी चीज है। इतर लगाना इसलिए कि आप मिजाजन नफासत पर रखते बहुत है। लेकिन अगर इतर लगाते वक्त आपके दिमाग में 1% भी बात आ गई कि मैं इतर लगाऊं ताकि सामने वाले के ऊपर रोक पड़े, अब आपका इतर ना लगाना ज्यादा अफजल है। ये इतर लगाना आपका हराम हो रहा है जो अब लगाने जा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि इसका मकसद कुछ और है। या मिसाल के तौर पर कहीं मिक्स गैदरिंग है, औरतें भी मौजूद है, मर्द भी मौजूद है, और आप ऐसी महफिल में जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इत्र लगाएं ताकि औरतों को खुशबू जाए, ये हराम है। ये सब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की है। उनकी तरबियत के मुताबिक मुसलमान जिस दिन इस धरती पर जीने लगेंगे ना, ये धरती फरिश्तों की धरती हो जाए। लेकिन हमारा मामला सब क्या है, सब उल्टा जा रहा है। सब टोटल नए चंद चीजें हैं हमने समझ रखी है। नमाज में गड़बड़ी हो जाए, इमाम साहब से 50 फोन आते हैं, मौलाना साहब इमाम साहब ने आज ये कर दिया, इमाम साहब ने आज ये कर दिया। क्यों? हमने ये समझ रखा है कि नमाज रसूल के तरीके पर पढ़ना है, बकिया हम आजाद हैं। आप आजाद कतई नहीं है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आप आजाद कितने हैं? उस घोड़े के मानिंद आजाद है जो रस्सी से बंधा हुआ है। वो समझता है मैं आजाद हूं, जब भागने की कोशिश करता है तो उतना ही आजाद है जितनी लंबी रस्सी है। उसके बाद उसका खूंटा क्या है? अपनी जगह पर फिक्स है। आपका इस्लाम का खूंटा अपनी जगह फिक्स है, आपकी रस्सी महदूद है। आप उतना सर्कल में जितना आजादी करना चाहे कर ले, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। लिहाजा ये शोहरत जो है, अगर इस लिहाज से भी अगर ज़ाहिरी माने में लिया जाए तो उस लिहाज से भी इसका मतलब यही है कि शोहरत अगर कपड़ा या किसी चीज के लिए ऐसा किया गया, शोहरत के लिए किया गया तो नाजायज है।
अब एक आदमी घर बनाता है, घर बनाने की वजह अगर शोहरत है वो भी इसमें दाखिल है, लेकिन अगर वो एक घर बनाता है बड़ा कि मेहमान आवे तो उनको तकलीफ ना हो, एक आदमी एक गद्दा के बजाय 4 गद्दा ला करके रखता है कि मेहमान आवे तो उनको तकलीफ ना हो, अच्छा सामान लेकर आता है कि जब लोग आवे तो उनको मिसाल के तौर पर 2 चादर के बजाय 4 चादर हो ताकि उनको बदबू ना आवे। ये ऐसी तमाम नियतें के लिहाज से ही हमको हर काम करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूं आगे बढ़ करके कि मुसलमान का सारा काम, बगैर मुबालगा ये कह रहा हूं, सारा काम सवाब की नीयत से होना चाहिए, सारा काम सवाब की। इंजीनियर साहब आए हमारे पास, एक कहा मौलाना साहब आपकी बड़ी तकरीर में सुनता रहता हूं, ये बताइए कि घर बनाने में हम क्या इस्लाम। तो हमने कहा कि बहुत सी बातें हैं, चलिए पूरी तकरीर कर देते हैं। मैंने पूरी तकरीर की कि हाउ टू बिल्ड द हाउस, घर कैसे बनाया जाए, पूरी तकरीर की। फिर मैंने थोड़ी देर उनसे कहा, हमने कहा जब आप कहते हैं कि इधर विंडो होनी चाहिए, इधर विंडो होनी चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, सभी कहते हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि घर में विंडो होनी चाहिए कि अगर धीरे से भी अजान आवे तो अजान की आवाज आनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपने नियत नहीं की ना ऐसी। अगर पहले दिन जिस वक्त आपने खिड़की बनाई और उस वक्त आप ये नियत करते कि मैं खिड़की इस कमरे में ज्यादा इसलिए रख रहा हूं कि अगर किसी भी जानिब से अजान आवे तो हमारे घर में अजान की आवाज आनी चाहिए, आपका ये खिड़की बनाना ऐसे ही जैसे कोई आदमी तस्बीह पढ़ रहा है। और एक छोटा सा काम करके पूरी जिंदगी आपने अपने अकाउंट में क्या किया, जब तक वो खिड़की कायम है आपके अकाउंट में। क्यों हमको इन चीजों को बताया नहीं गया? हमारा हर काम होना चाहिए सवाब की नीयत से। अगर उसमें आप देख लें कि सवाब की नीयत नहीं है, दूर हो जाए, कोई फायदा नहीं है, लगो है, बेकार है। इसलिए एक एक लम्हा हमारा क्या है, उस तालिब इल्म के तरीके से है जो एग्जाम हॉल में बैठा होता है और एक एक मिनट चूसता है, एक मिनट अपना बर्बाद नहीं करता है। उसे मालूम है कि 3 घंटे के बाद मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, मैं 3 घंटे के बाद कुछ भी लिखना चाहूं तो मुझे कतई इजाजत नहीं मिलेगी। लिहाजा ये हमको 3 घंटा दिया गया है, ये हमारा मौत की घंटी बजी कि आपकी कॉपी, हमारी कॉपी छीनी, आप उसके बाद कुछ भी करना चाहे। कुरान की आयत है कि लोग कहेंगे अल्लाह दोबारा भेज दीजिए, इस दुनिया में बड़े नेक हो जाएंगे। अब आपको बहुत वक्त दे दिया गया है, ये आपका हमारा ग्रेस पीरियड है। यही वजह, और खासकर मुसलमान के लिए तो इतनी बड़ी बात है, हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि हमारे कान में अजान दी जाती है। बताया जाता है बहुत सी वजूहात है। एक वजह क्या बंदे तेरी नमाज जनाजा की अजान हो चुकी है, बी अलर्ट, होशियार हो जाओ। जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारी पैदा होने की खुशी से ज्यादा हमारी मौत की इत्तला दी जाती है सबसे पहले, और फिर उसके बाद बाएं कान में इकामत कही जाती है कि अब इमाम साहब खड़े हो चुके हैं मुसल्ले पर, सिर्फ अल्लाह अकबर कहना बाकी, इस टाइम में जितना आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। इसीलिए जब नमाज जनाजा होती तो ना अजान होती ना इकामत होती है कि तेरी नमाज और तेरी अजान और तेरी इकामत दोनों हो चुकी है। इकामत के बाद इमाम साहब कितना टाइम लेते हैं अल्लाह अकबर कहने में? 4 सेकंड, 3 सेकंड, ये आपको टाइम दिया गया है। इसमें अपनी कॉपी में जो लिखना है लिखना, कोई बोलने वाला नहीं है। वो जो गार्डी करता रहता है एग्जाम हॉल में, आप अच्छा लिखे तो भी कुछ नहीं बोलता, खराब लिखे तो भी कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। ये जो आप इस दुनिया में लिख रहे हैं ना, और परवरदिगार आलम देख रहा है, शरारत कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में नंबर नहीं दिए जाते हैं। नंबर के लिए अलग से दिन मुतय्यन है, नंबर के लिए अलग से दिन मुतय्यन है, रिजल्ट का अलग से दिन मुतय्यन है। उस वक्त जो गार्डी कर रहा है, उस वक्त गार्डी करते वक्त वही टीचर जो पढ़ाया है उसके सामने आपने लिखा है 2 + 2 = 5। मैथ का टीचर है कि 2 2 5 आपने ले रखा है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बताता नहीं। क्यों? तो उसने तय कर लिया है कि इम्तिहान हाल में मुझे बताना नहीं है। ऐसे ही हमारा रब है, सब कुछ कुरान मजीद कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने तुमको इसलिए पैदा किया है ताकि मालूम